ભારત માતા કી, ભારત માતા કી। આજ રોજ વાલમ બાપાની પાવન ધરા ઉપર ગારિયાધારના આંગણે આપણા યશસ્વી દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને પંજાબના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી ભગવત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। જોરદાર ઊંચા હાથ કરીને તાળીઓના ગગડાટથી આપણે એમને વધાવીશું। હવે પોતાની જગ્યા પર બેસી જશું આપણે સૌ। કાર્યક્રમની શરૂઆત એમના સ્વાગત દ્વારા કરવી છે, ત્યારે સ્વાગત પહેલા કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માગું અને તું દે એ વાત મને મંજૂર નથી। મારે જોતું એ તું આપતો નથી, મારે જોતું એ તું આપતો નથી, અને તું દે એ મને મંજૂર નથી। આવી જા સામે આજ થઈ જાય ફેસલો, કાં તું નથી અને કાં હું નથી। એવા જયઘોષ સાથે અહીંના આપણા ઉમેદવાર સુધીરભાઈ વાઘાણી ગારિયાધારના ભામાશા અને અમરેલી લોકસભા અમરેલી જિલ્લાના પ્રમુખ નિકુંજભાઈ સાવલિયાને વિનંતી કરું કે દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીને વાલમરામ બાપાની મુમેન્ટ અર્પણ કરી અને એમનું સ્વાગત કરશે, અને આપણે આ સ્વાગતને તાળીઓના વિવેકથી વધાવીશું। ખૂબ ખૂબ આભાર। ત્યારબાદ એ જ બંને મિત્રો સુધીરભાઈ વાઘાણી અને નિકુંજભાઈ સાવલિયાને વિનંતી કરું કે આપણા પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માનજીનું સ્વાગત વાલમ રામ બાપાની મોમેન્ટ આપીને કરશે। જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું આપણા સ્વાગતને। ખૂબ ખૂબ આભાર। આપણે સૌ પત્રકાર મિત્રોને થોડોક સહયોગ આપશું, કારણ કે એના થકી આપણે સૌ ઉજળા છીએ, એના થકી જ આપણે ઉજળા દેખાઈશું। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હવે વિલંબ નથી કરવો, ત્યારે એક એવી આજે દિવાળી ચાલી ગઈ છે અને દેવ દિવાળી આવવાની છે, એમાં વચ્ચે આપણી દિવાળી પણ એક છે કે એવા ધડાકા અને એવા ભડાકાથી ફટાકડા ફોડવાના છે આપણે, એવા સરસ મજાના જોઈનિંગ થઈ રહ્યા છે। ત્યારે જેને મારે અહીંયા રજૂ કરવા છે તે પહેલા કે જાત કમાણી કરીને ખાય ઈ સિંહની જાત, જાત કમાણી કરીને ખાય ઈ સિંહની જાત, ઈ ભૂખ્યો રે ખડ નો ખાય ઈ સિંહની જાત। અરે મર્યા પછીનો માલ તો ગોલણ ગાડા ભરે, મર્યા પછીનો માલ ગોલણ ગાડા ભરે, પણ જેનું જીવતા બાવડું ન જલાય ઈ સિંહની જાત। અને કાળી અંધારી મેઘલી રાતે જેને માર્ગ દેતા જોયો છે, અરે જેના અંધારામાં સીલ ઓળખાય ને ઈ સિંહની જાત। આપણા પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે આગળના જોઈનિંગની અને એલાઉન્સનું કામ સંભાળે, અને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા। હાલો, સૌથી પહેલા આપણે બધા બે હાથ ઊંચા કરી એક જય ઘોષ કરીએ, ભારત માતા કે। સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। નવા વર્ષના સૌને રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ। ગઈકાલે લાભ પાંચમ ગઈ, નવા વર્ષમાં નવા જૂની થશે તો 5 વર્ષ સુધી આપણને લાભ મળવાનો છે। એવા સમયે એક બહુ ખુશીના સમાચાર મને આપતા પણ ગર્વ થાય, અને તમને બધાને ખબર છે કે દિવાળીમાં જેટલા ફટાકડા ફૂટ્યા એના કરતાં પણ મોટો ધમાકો હમણાં થવા જઈ રહ્યો છે। ભાજપવાળાના કાનના પડદા ફાટી જવાના છે। બહુ ત્રાસ જુલમ એમણે જે કાંઈ કરવાનું હતું એ કરી લીધું, હવે વારો આપણો છે ધમાકા કરવાનો। એટલે આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે એક એવા વ્યક્તિ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે, જેમણે પાયામાંથી સંઘર્ષની શરૂઆત કરી, બહુ નાની ઉંમરે સમાજના પ્રશ્નો માટે
લડવા માટે બહાર આવ્યા, ખૂબ આક્રમક, ખૂબ મજબૂત, ખૂબ જોશીલી લડત આપી, સમાજના તમામ પ્રશ્નોનો જ્યાં સુધી નિવેડો ન આવે ત્યાં સુધી એમણે મજબૂતીથી લડાઈને ચાલુ રાખી અને સરકારની સામે અને એમાંય ખાસ કરીને ભાજપની સામે જ્યારે આપણે લડતા હોઈએ ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોભ, લાલચ, ડર બધા જ પ્રકારના અવરોધ ઊભા કરવામાં આવે, પરંતુ તમામ પ્રકારના અવરોધને પાર કરીને આજે જ્યારે આપણી વચ્ચે પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે એમનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. જેઓ ઝૂક્યા નથી પણ ભાજપવાળાને ઝુકાવ્યા છે, જે પોતે ઊભા રહ્યા નથી પણ ભાજપવાળાને હવે ઊભા રાખી દેવાના છે, એવા માનનીય અમારા આગેવાન શ્રી અલ્પેશભાઈ કથિરિયા આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. હું એમનું ખૂબ ખૂબ સ્ટેજ ઉપર સ્વાગત કરું છું, માનનીય શ્રી અલ્પેશભાઈ કથિરિયા. અને એવા જ એમના સહયોગી ક્રાંતિકારી એવા ભાઈ શ્રી ધાર્મિકભાઈ માલવિયા પણ આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. હું એમને પણ મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીશ. માનનીય શ્રી અલ્પેશભાઈ કથિરિયા અને માનનીય ધાર્મિકભાઈ માલવિયા આજે આપણી વચ્ચે જોડાઈ રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ અને જોરદાર જોશ સાથે આપણે ભાઈ શ્રી અલ્પેશ કથિરિયાનું સ્ટેજ ઉપર સ્વાગત કરીએ. ભાઈ શ્રી અલ્પેશ કથિરિયા, ભારત માતા કી. અલ્પેશભાઈ તુમ આગે बढ़ो. વાહ ભાઈ વાહ, જોરદાર તાળીઓ. કેવું લાગ્યું? મજા આવી? ભાજપ વાળાની બગડી જશે હવે. ભાઈ શ્રી અલ્પેશભાઈ કથિરિયા, ભાઈ શ્રી ધાર્મિકભાઈ માલવિયા, એમનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. આમ આદમી પાર્ટીને આજે એક નવું બળ મળ્યું છે, નવી શક્તિ મળી છે, નવી ઉર્જા, નવું નેતૃત્વ મળ્યું છે. એ બદલ હું માનનીય શ્રી અલ્પેશભાઈ કથિરિયાનો આભાર માનું છું. આ સાથે એમની સાથે ખભે ખભો મિલાવીને હંમેશા માટે અલ્પેશભાઈ અને ધાર્મિકભાઈના સૈનિક બનીને જે કામ કરી રહ્યા છે, એમના સમર્થકો, સાથી મિત્રો પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. માનની શ્રી હિતેશભાઈ જાસોલિયા, માનની જિગ્નેશભાઈ વઘાસિયા, માનની હિતુભાઈ, માનની પંકજભાઈ સિદ્ધબરા, માનની પુષ્પકભાઈ, આ તમામ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય છે. એમની સાથે હું સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ સાથે આપણા ક્રાંતિકારી, પાવરફુલ, મજબૂત આગેવાન માનનીય શ્રી સુધીરભાઈ વાઘાણી, આ વિસ્તારના ભામાશા અને આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણી નેતા, એમના નેતૃત્વમાં, એમના પ્રયત્નોથી, કેમ કે આખા ગુજરાતમાં એક ક્રાંતિની લહેર ઉઠી છે, પરિવર્તનની એક લહેર ઉઠી છે અને લહેરની અંદર ધીરે ધીરે સૌ લોકોએ નક્કી કર્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાય અને ગુજરાતની બદલાવની લડાઈમાં યોગદાન આપવું છે. એવા સમયે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીની ઈમાનદાર રાજનીતિથી પ્રેરિત થઈને માનનીય ભગવંત માન સાહેબે પંજાબ સરકારમાં જે નવા નવા કામો કર્યા છે એનાથી પ્રોત્સાહિત થઈને આજે ગારિયાધાર નગરપાલિકામાં ચૂંટાયેલા કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જે સદસ્યો છે એ તમામ સદસ્યો વિરોધ પક્ષના નેતા સાથે માનની સુધીરભાઈના નેતૃત્વમાં અને અરવિંદ કેજરીવાલજીના હસ્તે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. આપણે એમનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. નગરપાલિકા ગારિયાધારના વિરોધ પક્ષના નેતા માનનીય શ્રી હિંમતભાઈ માણિયા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. એમનું મંચ ઉપર સ્વાગત કરું છું. માનનીય સદસ્ય શ્રી રમેશભાઈ બાબુભાઈ પાળિયાદરા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે, ગારિયાધાર નગરપાલિકાના સભ્ય છે. એવા શ્રી મનીષાબેન તુલસીભાઈ રોય આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. શ્રી આલુબેન ગોવિંદભાઈ કંટારિયા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. સમીમબેન ફિરોજભાઈ કાસમાણી છે. હીરાબેન ઘનશ્યામભાઈ કાસમાણી, અશોકભાઈ દામજીભાઈ ભરોળિયા, આ તમામ ગારિયાધાર નગરપાલિકાના સભ્યો આજ રોજ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય અને ગુજરાતની અંદર પરિવર્તન લાવવાની લડાઈના સહભાગી બની રહ્યા છે. આપણે એમનું ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. દોસ્તો, આ સાથે ગારિયાધાર શહેરના કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ માનનીય શ્રી વલ્લભભાઈ માણિયા પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. ગુજરાત પ્રદેશ પત્રકાર સંઘના માનનીય પ્રમુખ શ્રી લાભુભાઈ કાત્રોડિયા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. અને એવા જ ભાજપના જૂના કાર્યકર્તા એવા રમેશભાઈ રેવર પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. હું તમામ મહાનુભાવોને મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીશ.
માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી એમનું આમ આદમી પાર્ટીમાં સ્વાગત કરશે. આપણે બધા એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ બધાનું સ્વાગત કરીએ. સાથીઓ, ખૂબ મજા આવે છે. બધા જ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં ધીમે ધીમે જોડાય તો મજા બહુ આવે છે. અને ટીવીમાં આ બધો જોઈનિંગનો કાર્યક્રમ ભાજપવાળા જોતા હશે તો એને તે કંઈક ને કંઈક તો થતું જ હશે ને. તો ભાજપવાળાને વધુ મજા કરાવવા માટે, વધુ એને જે કાંઈ પેટમાં દુખાવો છે એની દવા કરવા માટે હું માનનીય અલ્પેશભાઈ કથિરિયાને વિનંતી કરીશ કે આજે એમના સ્વાગત પ્રવચનથી તેઓ ગુજરાતને, ભાજપને અને આમ આદમી પાર્ટીને કંઈક સારો સંદેશ આપે. માનનીય અલ્પેશભાઈ. હાલો હાલો, બે હાથ ઊંચા કરી અને આપણે જય ઘોષથી આજની શરૂઆત કરીશું. બોલો વંદે વંદે વંદે. ઇન્કલાબ ઇન્કલાબ ઇન્કલાબ. આજના નવા વર્ષના શુભ દિવસ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં માત્ર એક જ એવી ભૂમિ છે કે જેની પાછળ પણ રાષ્ટ્ર લાગે છે એવું મારું, આપણું અને આપણા ગુજરાતનું એવું વાલું સૌરાષ્ટ્ર. અને એમાં પણ આપણા સૌના પૂજનીય બાપા એટલે વાલમ બાપાની આ પવિત્ર ભૂમિ, આ ગારિયાધારનું આ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત જેમણે આ દેશને કંઈક આપવાનો, કંઈક નવી દિશા આપવાનો, કંઈક નવું નેતૃત્વ આપવાનો અને ઈમાનદાર રાજનીતિની જેમણે શરૂઆતની પહેલ કરી છે એવા માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, પંજાબમાં જેમણે નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે એવા ભગવંત માનજી, મારા મોટાભાઈ અને સાથી મિત્ર ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા અને ડાયસ પર ઉપસ્થિત સૌ આગેવાનો અને તમે જેને જીતાડવાનો છો એવા માનનીય શ્રી સુધીરભાઈ વાઘાણી. આપ સૌ પ્રજાજનોના ચરણોમાં વંદન સાથે નવા વર્ષના મારા રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. આજે પાટીદાર અનામત આંદોલનના 7 વર્ષથી પણ વધારે સમયગાળા પછી અમે ને અમારી ટીમ સાથે એક નિર્ણય લીધો કે રાજનીતિના મંચમાં કંઈક જઈએ ને કંઈક કરીએ. શું સમાજ નિર્માણથી, રાષ્ટ્ર નિર્માણથી જવા માટે કોઈ રાજનીતિનો મંચ હોઈ શકે? શું કોઈ પક્ષ હોઈ શકે? તો એ પક્ષમાં અમે પસંદગી ઉતારી છે અને આપે પણ પંચને પસંદ કર્યો છે એવી આમ આદમી પાર્ટી છે. સંઘર્ષ હોતો જ હોય છે, પણ જે કોઈ પણ મિત્રો સંઘર્ષના માર્ગે આગળ આવ્યા છે, અમે પણ જે સંઘર્ષ કર્યો છે અને ટીમ પણ જે સંઘર્ષ કરી રહી છે, એમના માટે મારા એવા 2 શબ્દો છે કે જેટલો સંઘર્ષ મોટો હશે એટલી જીત શાનદાર હશે. અને આ સંઘર્ષની લડાઈમાં તમારા સાથ સહકારની જરૂર છે. ગઈકાલે જ આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને આપણે જેમને બાપાના નામથી પોકારીએ છીએ એવા કેશુ બાપાની પુણ્યતિથિ, સાથોસાથ આંદોલનમાં શહીદ થયેલ 14 શહીદો, સર્વના ચરણોમાં અમે વંદન કરીએ છીએ, એમને આ તકે યાદ કરીએ છીએ. આ સમાજની લડાઈ, આ સ્વાભિમાનની લડાઈ, આ રાષ્ટ્રની લડાઈ, આ દેશની લડાઈ, આ ઈમાનદારીની લડાઈ, આ સારા શિક્ષણ અને આરોગ્યની લડાઈ, આ ભય ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાતની લડાઈ
અને સારી શાસન વ્યવસ્થાની લડાઈની માટે આપણે સૌએ આગળ આવવાનું છે. આજે જે રાજનીતિના મંચ બન્યા છે, ઘણા પક્ષો એમાં હોતા હોય છે, ઘણા પક્ષોની હારજીત થતી હોય છે, પણ જ્યારે એક એવી પાર્ટીઓના ઉદય થતા હોય છે કે જેમને રાજનીતિમાં કંઈક પરિવર્તનની આશા રાખતા હોય છે, અને હું ને તમે અહીંયા બેઠેલા મંચ ઉપરના સૌ લોકો એવી આશા રાખીએ છીએ કે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતની અંદર કંઈક સારું થાય, કંઈક સારું પરિવર્તન આવે. આ જ્યારે પરિવર્તનની દિશા મેં ને તમે નક્કી કરી છે, ત્યારે સુરત અને સૌરાષ્ટ્ર એવી એક તાસીર રહી છે કે સૌરાષ્ટ્રમાંથી જે કંઈ થાય એ સુરતમાં જાય, અને સુરતમાંથી જે કંઈ થાય એ સૌરાષ્ટ્રમાં જાય. ત્યારે અમે ને અમારી ટીમે નક્કી કર્યું કે જે સૌરાષ્ટ્રમાંથી મારા અને સુરતના તમામ લોકોના ઘરમાં જે દાણા આવે છે, અન્ન આવે છે, એ સૌરાષ્ટ્રની પવિત્ર ભૂમિ પર જઈ અને રાજનીતિના મંચમાં સમરાંગણ કરીએ. ત્યારે આ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ અમે નતમસ્તક કરીએ છીએ. અત્યાર સુધીમાં 2 રાજદ્રોહ સહિતના 22 કેસોથી પણ વધારે કેસો આ લડાઈમાં અમને મળ્યા છે. 14 મહિનાથી પણ વધારેની જેલ યાત્રા ભોગવી છે. ઘણા બધા સાથીઓ ઉપર અસંખ્ય કેસો થયા છે. હાલમાં પણ વર્તમાન સમયમાં સાથીઓ, મહિલાઓ, વડીલો, સમાજના બાલ બચ્ચાઓ કોર્ટની તારીખો ભરી રહ્યા છે. ત્યારે અમે પણ ઈચ્છીએ છીએ કે ગુજરાતમાં એક સારી એવી સત્તા આવે ને ખૂબ સારું પરિવર્તન થાય. આ પરિવર્તનની લહેરમાં આજ રોજ વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીની સાથે ઊભા રહી અને એમાં ખંભે ખંભો મિલાવવા માટે અમે હાજર થયા છીએ. 2015થી લઈને આજ દિન સુધીમાં વિશિષ્ટ લડાઈઓ થતી રહી. ગુજરાતમાં અનેક આંદોલનો થયા, પણ છેલ્લા 7 વર્ષથી પણ વધારે સમય કોઈ આંદોલન ચાલ્યું હોય ગુજરાતમાં તો એક માત્ર પાટીદાર સમાજનું એક આંદોલન હતું. ઘણું સમાજને આ મળ્યું છે આંદોલનથી, અને આવનારા દિવસોમાં સમાજની દશા અને દિશા નક્કી કરવાનું આપ સૌના હાથમાં છે. આ તબક્કે સૌથી વધારે જેમણે અહીંયા મંચ સુધી પહોંચવામાં મહેનત કરી છે એવી પાસની ટીમ, કાર્યકર્તા, અમારો પરિવાર, સૌ સાથેની ટીમ અને સૌ જેલના ક્રાંતિકારીઓને મારા સલામ. આવનારા દિવસોમાં સારા મંચથી સારા પ્રયત્ન કરીશું. ગરીબી, શિક્ષણ, આરોગ્ય જે મુદ્દા એવા છે કે જે મારા ને તમારા ઘર સુધી આવી ગયા છે, આ મુદ્દાઓના સમાધાન કઈ રીતે થાય એ સમાધાન આ મંચ લઈને આવ્યું છે. એ મુદ્દાઓને કઈ રીતે સોલ્વ કરવા એનું સમાધાન આ મંચે તૈયાર કર્યું છે. કે સારું શિક્ષણ કઈ રીતે આપવું, સારું આરોગ્ય કઈ રીતે આપવું, સારી શાસન વ્યવસ્થાનું નિર્માણ કેમ કરવું, એ દિશામાં આપણે સૌ આગળ વધીશું. ગુજરાતને ભયમુક્ત, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત, સારી શાસનવાળું ગુજરાત બનાવશું. અને આ તબક્કે અહીંયા ઉપસ્થિત અમારી ટીમ, આપ સૌ લોકો, અને અહીંયા બોલવાનો અમને મોકો આપ્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. છેલ્લે 2 વાત કહીને મારી વારીનો વિરામ આપીશ કે सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलिस्तान हमारा. 2 હાથ ઊંચા કરી છેલ્લે ભારત માતાનો જયઘોષ કરી અને વાણીને પૂર્ણ કરીશું. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય સરદાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. પડકારને પડકારવો ના મર્દને મુશ્કેલ છે, પડકારને પડકારવો ના મર્દને મુશ્કેલ છે, ઘેરો હટાવી પાર પડવું મર્દને ઈ ખેલ છે. હે યુવક ઢૂંઢ તારા જ પગલે કોઈ નવી કેડી હશે. યુવાનીના પગલે કોઈ કેડી કરનાર હોય તો એ અલ્પેશભાઈ કથિરિયા છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું આપણે એમને. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા જાને આપણે સાંભળવા છે भगवत मान जी, जब पंजाब का परिणाम आया तो गारियाधार में 12 लाख के पटाखे लगाए गए थे. हर एक जगह पे गारियाधार की कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पटाखा नहीं था. और सुधीर भाई ने वक्त दे दिया था कि रात के 9:05 पे सबको पटाखे जलाने हैं. आधा घंटा पूरे गारियाधार में पटाखे फूटते रहे. ऐसी जोरदार जीत मनाई थी हमने. और वहीं से भगवत मान जी हमारे बीच में है. મને એ જ સમજાતું નથી આમ શાને થાય છે, મને એ જ સમજાતું નથી આમ શાને થાય છે. અરે ફૂલડાઓ ડૂબી જાય છે અને પથ્થર તરી જાય છે, મને એ જ સમજાતું નથી આમ શાને થાય છે.
અને મળતું નથી. એક સૂકા ઘાસનું તણખલું કામધેનું ગાયને મળતું નથી. એક સૂકા ઘાસનું તણખલું કામધેનું ગાયને અને ઓલા લીલાસમ ખેતરો આખલા સરી જાય છે. મને એ જ સમજાતું નથી આમ શાને થાય છે. અને સે ગરીબના કુબામાં એક તેલનું ટીપુય દોયલું, સે ગરીબના કુબામાં એક તેલનું ટીપુય દોયલું અને અમીરોની કબર ઉપર ઘીના દીવા થાય છે. મને એ જ સમજાતું નથી આમ શાને થાય છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ પંજાબના સીએમ ભગવત માનજીને. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ियाधार में इतना प्यार सम्मान मिला, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर सुशोभित देश के क्रांतिकारी नेता, जिनकी नीतियों की बात सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में होती हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल भाई इटालिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरी पूरी टीम गुजरात की और अमरेली और भावनगर के इलाके की पूरी टीम, और आप सब लोग पार्टी की रीढ़ की हड्डी। आप अपने घर से जब पहला कदम आपने उठाया, समझ लो वो परिवर्तन वाला कदम था। आज आप इतिहास लिखने जा रहे हो। मेरी तरफ से सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम जो यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम यहाँ कोई आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आए, हम आपके खाते में 15 लाख डलवाने नहीं आए, हम आपको नेता बनाने आए हैं। खुद बनने नहीं आए, आपको बनाने आए। क्योंकि आम आदमी पार्टी रामलीला ग्राउंड के एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। इसमें पहले थोड़े लोग थे, उसके बाद काफिला बढ़ता गया। मांग क्या थी? मांग ये थी कि मंत्री हो चाहे संतरी हो, कानून एक होना चाहिए, भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए, लोगों को अच्छी सहूलतें मिलनी चाहिए, यही मांग थी। लेकिन वो अहंकार में थे दोनों पार्टियों वाले, कांग्रेस और बीजेपी। उनको लगा ये चंद लोग हैं, क्या कर लेंगे सड़क पर बैठकर। वो मजाक किया करते थे, कानून बनाने हैं, सड़क पर बैठकर नहीं बनेंगे, चुन के आइए, ये बोलते थे, चुन के आइए। 2014 में हम लोग चुन के गए पंजाब से, और जो चुन के आइए कहते थे वो राज्यसभा में आए, वो हार गए थे। मैंने कहा जी तुम भी चुन कर आइए। तो ये मजाक करते थे, अहंकार करते थे कि हमारे बिना कोई आ ही नहीं सकता। 5 साल हम, 5 साल वो आ गए तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, हम आ गए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। 5-5 साल की वारियां थी। अंग्रेजों ने इकट्ठे 200 साल लूटा, ये हमारे वालों ने 5-5 साल की किश्तों में लूटा। कहां आजादी मिली हमें? कौन सी आजादी की बात करते हो? आजादी आपके घर पे पहुंच गई जी? नहीं पहुंची। अगर आजादी जो भगत सिंह के सपनों की आजादी थी, शहीदों के सपनों की आजादी थी, वो हमारे घरों में पहुंची होती तो आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेकर ऑफिसर बनते। अगर वो आजादी हमारे घरों तक पहुंच जाती तो कोर्ट कचहरी थाने में गरीब की सिफारिश के बिना उसकी सुनवाई हो जाती। आजादी हमारे पास पहुंची नहीं, वो तो इनके महलों में और इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। उस आजादी को घर घर पहुंचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उस आजादी को आपके घर तक पहुंचाने की। मुझे पत्रकारों ने पूछा गुजरात में मुकाबला किस पार्टी से है? गुजरात में मुकाबला किससे है? बीजेपी या कांग्रेस से? मैं कहा नहीं, गुजरात में हमारा मुकाबला महंगाई से है, गुजरात में हमारा मुकाबला गरीबी से है, गुजरात में हमारा मुकाबला भ्रष्टाचार से है,
गुजरात में हमारा मुकाबला पेपर फोड़ने वालों से है, गुजरात में हमारा मुकाबला हमारे बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खाने वालों से है, गुजरात में हमारा मुकाबला हमारे बच्चों के हिस्सों की शिक्षा और पढ़ाई खाने वालों से है। उनसे मुकाबला है हमारा। खा गए लूट कर देश को। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। खाते का फर्क है बस, यहां खाते हैं वहां खाते हैं। तो कैसे बन जाती है प्रॉपर्टी, तब खजाना खाली क्यों नहीं होता? कैसे बन जाती है, इनके स्विस बैंक के अकाउंट भर जाते हैं तब खजाना खाली क्यों नहीं होता? पब्लिक कुछ मांगे खजाना खाली। अरे भाई, खजाना भरने वाले लोग हैं, उनको दो कुछ। बड़े बड़े वादे करते हैं, पहले तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। कितनी देर चलेगा? लेकिन मैं आपको धन्य मानता हूं भाई, 27 साल हो गए, 27 साल हो गए, एक ही पार्टी चल रही है। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, अब तो बदल लो। पेड़ को भी लगे कोई नई हवा का झोंका आया है, कोई नया सूरज उदय हुआ है, नई धूप आई है। पेड़ को भी लगे हां कुछ नया हो रहा है, नई लहर आई है। और पूरे गुजरात में ये लहर चल रही है। जहां भी जाते हैं लोग उमड़ के आते हैं। सड़कों पर लोग इधर भी और इधर भी, सिर्फ ये कहने के लिए कि घबराना मत, अरविंद केजरीवाल आपके साथ हैं। कहीं तो झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हैं ऐसे, अपने घर का झाड़ू। और इस झाड़ू से हम पहले दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। कांग्रेस, चलो छोड़ो, उनकी क्या बात करें, वो तो खत्म हो गया काम। कांग्रेस तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत 90 साल बुजुर्ग की तरह है, जिसको डॉक्टर भी बोल देता है कि भाई घर ले जाके इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है। अब दिल्ली में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 15 में, 2015 में इलेक्शन हुई, दिल्ली में कितनी सीटें आई? 0। लेकिन कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, 5 साल इतनी मेहनत की कि अपनी पोजीशन को कायम रखा, कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने 2020 में भी 0। तो ये वो पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, सबसे पुरानी पार्टी कहती है, देश की राजधानी में 2 बार 0। और यहां इनके बड़े बड़े नेता रहते हैं, राहुल गांधी वगैरह, बड़े बड़े नेता इनके बड़े बड़े घरों में रहते हैं। उस इलाके, वो इलाका नई दिल्ली विधानसभा में आता है। और वहां का एमएलए कौन है पिछले 3 बार से? अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब इन नेताओं के जो नौकर हैं, माली हैं, ड्राइवर हैं, वो भी उनको वोट नहीं डालते, क्योंकि वो हर वक्त देखते रहते हैं इनको क्या देश को खत्म करने के लिए चालें चलते हैं। कौन आता है, कौन जाता है, आपस में ये सीट मेरी, ये तुम्हारी, ये मैं तुझे छोड़ देता हूं, ये मैं, ऐसे मतलब चेस की तरह हमारे साथ गेम खेलते हैं। तो इसको, इस सिस्टम को बदलना होगा। और ये नहीं है कि कोई बदल नहीं सकता। हम यहां पर आपको 2 एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके पास। दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली बदला। दिल्ली में स्कूल अच्छे हुए, दिल्ली में बिजली बिल्कुल फ्री, दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री, दिल्ली में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 350 करोड़ में पुल बनना था वो 200 करोड़ में बनाया, 150 करोड़ जो बचा उससे पूरी दिल्ली को दवाई फ्री कर दी। ऐसे दिल्ली चली, 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया भाई दिल्ली ने, ऐसे दिल्ली चली। क्योंकि इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनको पता है पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। भ्रष्टाचारियों के पास से आएगा, लोगों के पास जाएगा, ये सिस्टम है। उसके बाद पंजाब में इस बार हमने 117 में से 92 सीटें जीती, और 92 में से 82 एमएलए पहली बार जीते हुए आम घरों के बेटे बेटियां हैं जी। मैं भी हूं उनमें, मैं भी पहली बार एमएलए बना हूं, पहले मैं एमपी था। तो आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते जी विधायक?
आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते चेयरमैन? क्या हमको जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ इन्होंने? हाँ, आम जनता इनकी पॉलिटिकल फैक्ट्रियों का कच्चा माल है, कच्चा माल। कहीं इधर झोंक देते हैं, कहीं इधर झोंक देते हैं। इनसे पीछा छुड़वाओ, बहुत हो गया। और मैं धन्यवाद करता हूं घाड़ियाधार वालों का कि जीत हुई पंजाब में, पटाखे फूटे घाड़ियाधार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये धन्यवाद हमारा 8 दिसंबर तक है। 8 दिसंबर को हम भी पंजाब में आपके जीत की खुशी में पटाखे फोड़ेंगे। ईमानदारी की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। हमारे पास पैसे नहीं है जी, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे में हम इनको हरा ही नहीं सकते, गुंडागर्दी में हम इनको हरा ही नहीं सकते। हरा सकते हैं तो सच्चाई में, ईमानदारी में हरा सकते हैं। 7 महीने में हमने जो गारंटियां दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने आके गारंटियां दी थी, गारंटी, नोट वादा, गारंटी कि ये करेंगे। 7 महीने में हमने पूरियां करनी शुरू कर दी। हमने कहा था बिजली फ्री कर देंगे। 1 जुलाई से पंजाब में बिजली फ्री कर दी, 300 यूनिट पर मंथ। 2 महीने का बिल आता है। 74 लाख से ज्यादा मीटर हैं। इस बार 50 लाख से ज्यादा घरों को बिजली का बिल। और दिल्ली में भी ऐसा होता था पहले, पंजाब में भी ऐसी होता था, गुजरात में भी ऐसी होता था। बिजली टाइम पे आए ना आए बिल आता था। अब उल्टा हो गया है, बिजली टाइम पे आती है, 24 घंटे रहती है, बिल नहीं आता। तो कहां से आया पैसा? बोले कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा? मुझे भी बोलते रहते हैं वो वहां विपक्ष वाले, कहां से पैसा आएगा। मैंने कहा आप ही के पास से आएगा भाई साहब, आप वेट तो करो। अभी 10-15 ही पकड़े हैं हमने, काफी माल निकल आया वहां से, और वही खजाने में जमा करा के लोगों के पास देंगे। अभी पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार में एक मंत्री रहा था, इंडस्ट्री का मंत्री था कांग्रेस की सरकार में, 5 साल मंत्री रहा था। जैसे हमारी सरकार बन गई, उनको पता चल गया ये तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये तो बख्शेंगे नहीं, तो बीजेपी में चला गया। मतलब बीजेपी को तो ऐसे मानते हैं ना, जैसे एक वॉशिंग मशीन है, जितने भी दाग हैं उसमें डाल दो, बाहर निकलोगे तो दाग साफ हो जाएंगे। तो हमने तो अभी उसकी जांच शुरू भी नहीं की थी, वो खुद ही आ गया विजिलेंस के पास 50 लाख रुपए लेकर, ये ले लो जी, मेरा नाम नहीं। ऐसा हो गया। मैंने कहा अब तो नाम डाल दो, अब निकाल दो, नहीं है। खुद आया पैसे लेके, उसके घर की तलाशी ली, नोट गिनने वाली मशीन मिली। इतने नोट होंगे कि पूरे परिवार का थूक खत्म हो गया गिनते गिनते, कि मशीन ले आओ। अब गरीब की हालत ये है, गरीब नोट गिनने लगता है, 2 बार ऐसे करता है, नोट खत्म हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? इतने बड़े बड़े आलीशान घर हैं, अब कहां बैठा है? जेल में। तो फिर क्यों करते हो ऐसा? किसी का हक क्यों मारते हो? बद्दुआएं क्यों लेते हो गरीब की? आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। हम आपसे वादा करते हैं, आपसे गारंटी भी देते हैं कि जो हम कहते हैं वही करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें सबको ये बोला हुआ है, भगवंत अगर 5 काम करने हैं तो 5 ही बोलने हैं। 5 बोलकर 6 कर दोगे, बहुत शाबाशी मिलेगी, और 5 बोलकर 4 करोगे, लोग कहेंगे कम रह गया 1। तो हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। 15 लाख तो नहीं डाल सकते हम, आ गया यहाँ 15 लाख तो आ गया मेरे ख्याल में सबके खाते में। आप बोल रहे थे अभी, हमारे भी नहीं आया भाई साहब, चिंता मत करो। 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएगा, कहां से आ जाएगा? बाद में कहते हैं जुमला था, हद है। ये समझते क्या है जनता को? ये कोई बात नहीं। इनके घरों के पास हम जाते हैं, इनके घरों में जाते हैं, राजधानी में जाते हैं, काम है, बच्चे को नौकरी लगवानी है, कोई गांव का काम है, सड़क टूटी हुई है, मंत्री के घर पे जाते हैं, चाय पानी की बात छोड़ो, दरवाजा भी नहीं खुलता, एक छोटी सी विंडो रखी होती है साइड में,
वहां से पीए खोलता है छोटी सी विंडो को और कहता है साहब घर पे नहीं है, अगले बुधवार को आना। कुंडी बंद। गाड़ियादार वालों, अब आपके पास एक मौका आएगा बदला लेने का। ये आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे वोट मांगने के लिए, ये डोर टू डोर आएंगे। बदला ले लेना, दरवाजा अंदर से मत खोलना, अंदर से बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना। तब इनको पता चलेगा किसी दर्द से खाली वापस जाने का दर्द क्या होता है। इनको पता चलना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है। आज ज्वाइन किया, बहुत से समाजसेवी ज्वाइन किया उन्होंने, हमारा परिवार और बढ़ गया। हमें खुशी होती है। हम तो चाहते हैं आइए सब आइए इकट्ठे होके देश में एक ऐसी लहर पैदा करें कि नंबर 1 देश बने। क्या नहीं है, कुदरत ने क्या नहीं दिया हमारे देश को। पहाड़ दिए, मारूथल दिया, तेल हमारे पास है, हमारे पास हरियाली है, हर किस्म का पेड़ हमारे पास है, जड़ी बूटियां हमारे पास हैं, हमारे पास जो चारों किस्म के मौसम हमारे पास हैं। बस है नहीं तो अच्छी नीयत वाले नेता नहीं है। अगर वो भी अच्छी नीयत वाले हो गए तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और ये कहते हैं हम पैसे देके लोगों को खरीद लेते हैं। कोई बात नहीं, लोगों का क्या है जी, पैसे दे देंगे। ये आपको आएंगे, ये आने वाले दिनों में। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए तो वापस नहीं करते, तुम्हारा ही माल है भाई। कई कई तो नोट भी पहचान लोगे, ये तो मेरे ही नोट है, वहां खर्चा था जो दुकान पे। और इनको बोल देना कि हाँ हाँ हाँ। और अब वोटिंग वाले दिन अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के बोल देना कि हाँ हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते, बाकियों को माफ है। अरे बहुत समझदार इलाका है भाई, बहुत समझदार इलाका है भाई। तो हम तो यही कहते हैं, पंजाब में भी ऐसा हुआ है, लोगों ने बदला लिया इनसे और 7 महीने की सरकार ने वो काम कर दिए पंजाब में जो 70 साल में कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकते थे, अकाली दल नहीं कर सके। वो काम किया हमने। मुलाजिमों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी हमने, 8%, 6% दिवाली का तोहफा डीए का दिया हमने। 20,000 नौकरियां 6 महीने में निकाल के उनको नियुक्ति पत्र देके उनको स्टेशन पे ज्वाइन करवा लिया। कोई पेपर नहीं फूटता पंजाब में और दिल्ली में। एक लड़का मुझे मिला, उसकी आंखों में पानी था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता बहुत तैयारी की थी मान साहब, आधी आधी रात तक पढ़ा, सुबह उठ के पढ़ा। मैंने कहा क्या बात है, नंबर कम आए? कहता नहीं जी, पेपर फूट गया, अब पढ़ने को दिल नहीं करता। पेपर फूटा, सपना टूटा। जितने सपने तोड़ने वाले हैं ना, उनकी तो हम लिस्ट बना रहे हैं। देख आप एक बार हमें मौका दे दीजिए, वो पेपर फोड़ने वाले कहां होंगे जी? अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। इनको करना आता है ये काम। तो आओ इकट्ठे होके देश के लिए कोई नई कहानी लिखें, इनसे पीछा छुड़वाइए। ये हमारे रैली की जगह कैंसिल करा देते हैं। ये कहते हैं जी पोस्टर नहीं लगा सकते, पोस्टर हमारे फाड़ देते हैं। दरियाओं को कोई रोक सकता है? दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और ये दरिया ये हमसे नहीं डरते। हाँ, हमारी कोई औकात नहीं है। जो छोटी से निमंत्रण पर आप इतनी भारी संख्या में आ जाते हो ना, ये आपसे डरते हैं, आप लोगों से डरते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो जो दिलों में बसता है ना, राज वही करता है। ये पोस्टर लगा के या ये जबरदस्ती अपनी फोटो लगा के ये दिलों में जगह नहीं बना सकते। और पब्लिक ऐसी है, चुप रहे तो 5 साल, होंठ सीले 10 साल, सब्र कर ले 15 साल, आपकी तरह सीने पर पत्थर रख ले 27 साल। लेकिन अगर 27 साल के बाद पब्लिक जागती है ना, जब उठती है ना, तो फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है। ये जनता है। तो दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगाएंगे ताकि गूंजे आसमान इनकलाब जिंदाबाद के नारे से।
शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद जी नारे लगाते थे तो अंग्रेज थर थर कांपते थे, लूटने वाले थर थर कांपते थे। तो आज भी ये हिस्ट्री रिपीट कर दीजिए गाड़ी आधार में। इनकलाब, थोड़ा सा और कर दो, पहाड़ तो टपा दो ना ये। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की जय जवान, जय जवान, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यार से सुना। तंदुरुस्त रहे आप, परमात्मा आपको रखे और तरक्कियां करें। बहुत बहुत मेहरबान। જોરદાર તાળીઓથી વધાવી આપણે। ત્યારબાદ હવે જેને સાંભળવા છે એ આપણી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી, જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ અરવિંદ કેજરીવાલજીને। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, वलाराम बापा की, वलाराम बापा की। केम छो? मजामा। आज मुझे बेहद खुशी है, आम आदमी पार्टी का परिवार खूब बढ़ रहा है, रात दिन खूब तरक्की कर रहा है। मैं सबसे पहले अल्पेश भाई और धार्मिक भाई का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। युवा नेता हैं दोनों और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने युवाओं के हक के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा जेल गए, बहुत संघर्ष किया। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को एक और समाचार देना चाहता हूं। अभी मैं भावनगर से आ रहा हूं, वहां पे राजू सोलंकी जो कि कोली समाज के और बाकी सभी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अभी आप लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और उनकी नीतियों से खुश होकर अभी 10 काउंसलर जो हैं यहाँ के, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ गजब हो रहा है, चारों तरफ बदलाव बदलाव। जिससे पूछो इस बार चुनाव में क्या होगा, बदलाव बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन। बदलाव की आंधी चल रही है पूरे गुजरात में। किस किस को बदलाव चाहिए, जरा हाथ खड़े करके बताएं। सबको बदलाव चाहिए, सारे गुजरात को बदलाव चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आईबी ने यह भी बोला है, सरकार तो बन रही है पर अभी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 90-92 सीट आ रही है, जीतेंगे लेकिन 90-92 सीट आ रही है।
देखो 90-92 से काम नहीं चलेगा, ये बड़े खराब हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को, गिरा देंगे सरकार को। हमें 150 सीट चाहिए, 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में दिल्ली वालों ने इनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 70 में से 67 सीट आई थी, 67 सीट 70 में से। आम आदमी पार्टी की 67 सीट, कांग्रेस की 0 सीट, भाजपा की 3 सीट, 70 में से 3 सीट। पंजाब के चुनाव में 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी की, 92, भाजपा की 1 सीट, 117 में से 1 सीट भाजपा की पंजाब में। इस बार आप गुजरात वालों पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दो। 182 में से 150 पार करनी है। स्थिर सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, ताकि अगले 5 साल में खूब काम कर सके हम लोग, खूब काम कर सके। तो सरकार बनने जा रही है दिसंबर में, 15 दिसंबर को सरकार बनेगी। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? इतना लूटा है इन लोगों ने, इतना लूटा है 27 साल में। कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे घाटे में क्यों चल रही है? कहां गया सारा पैसा? इतना आप लोग इतना टैक्स देते हो, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है, डीजल लेते हो, पेट्रोल, हर चीज पे टैक्स लगता है। अरबों खरबों रुपया आप लोग देते हो इनको टैक्स में। कहां गया सारा पैसा? खा गए सारा पैसा। एक एमएलए आपका, मुझे पता चला कि चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, चुनाव के बाद 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ कहां से आई सारी जमीन? एक और एमएलए है, चुनाव के पहले किसी दुकान पे 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था, 5 साल में 20,000 करोड़ का मालिक हो गया। 20,000 करोड़ कहां से आया सारा पैसा? इतने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली इन लोगों ने, इतने मकान बना लिए अपने नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, जो पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने। लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को 27 साल में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जितना पैसा खाया इन लोगों ने, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के इनके पेट में से सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे हम लोग। छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। एक एक पैसे का हिसाब होगा। 27 साल में जितना पैसा गुजरात का लूटा इन नेताओं ने, सारा पैसा वापस दिलाएंगे, आपके ऊपर खर्च करेंगे, आपके बच्चों के, आपके परिवार के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा वाला भी कोई चोरी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब में, हमारी सरकार बनी 6 महीने पहले, भगवंत मान साहब को किसी ने आके बोला कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, वो गड़बड़ कर रहा था। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? इस कलयुग के जमाने में कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? कोई और मुख्यमंत्री होता तो कहता कितने कमाए, थोड़े मेरे को भी दे। इन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार सरकार है आम आदमी पार्टी की। हमारा भी कोई चोरी करेगा, मेरा बेटा भी चोरी करेगा, छोड़ेंगे नहीं उसको। मेरा भाई भी चोरी करेगा, जेल जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक एक पैसा गुजरात सरकार का आपके परिवार के ऊपर खर्च होगा, आपके बच्चों पे खर्च होगा, आपके भविष्य के ऊपर खर्च होगा। आप सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए,
राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी कनेक्शन लेना है, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? रिश्वत देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती? पंजाब में नहीं देनी पड़ती, दिल्ली में नहीं देनी पड़ती। 15 दिसंबर के बाद गुजरात में भी आपके सारे काम बिना रिश्वत के होंगे, आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, बिना पैसे के आपका काम होगा। और ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करना, घर आके सरकारी अफसर आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, आपका घर आके काम करके जाएगा। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर जारी किया है, आप फोन करो, बोलो कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, मेरे को बिजली कनेक्शन लेना है, सरकार से एक अफसर आपके घर आता, आपका काम करके जाता है। गुजरात में भी यही व्यवस्था कायम करेंगे दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से हम लोग गुजरात आ रहे हैं, बहुत प्यार मिला हमें गुजरात के लोगों से, बहुत ज्यादा। कोई कहता है अरविंद जी आप भाई की तरह हैं हमारे, मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे भाई की याद आती है। बुजुर्गों से मिलते हैं, वो कहते हैं बेटे की तरह आप हमारे हैं। हमें लोगों ने अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन कौन मुझे अपना भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? जरा हाथ खड़े करें। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं तहे दिल से कि आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जिंदगी भर में आपका एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन वादा करके जा रहा हूं, जिस दिन सरकार बनेगी अगले 5 साल के अंदर एक एक वादा, एक एक गारंटी पूरी करेंगे, आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार का भाई बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं आपके परिवार में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। હવે તમારે चिंता કરવાની જરૂર નથી, તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? बहुत ज्यादा। कमाई बढ़ी नहीं है, आमदनी बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। 1 मार्च के बाद आपको अपने परिवार का बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका भाई केजरीवाल आपके परिवार का बिजली का बिल भरेगा। 1 मार्च के बाद आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। मैं आपके बिजली के बिल भरूंगा। दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है, बिजली के बिल 0 आते हैं। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली के बिल 0 आते हैं। 1 मार्च के बाद आपके भी बिजली के बिल 0 आएंगे, 24 घंटे बिजली आया करेगी। कितना आता है बिजली का बिल? 2000, 3000, 3000 रुपए महीना। 3000 वो बता रहे हैं, 4000, 3000 रुपए मोटा मोटा। तो 3000 रुपए महीना आपका बिजली का बिल बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? आपके परिवार में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, उनकी फीस की जिम्मेदारी मेरी, उनकी ड्रेस की, उनकी कॉपी किताबों की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं। उसमें गरीबों के, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे बैठ के। जज का बेटा, IAS अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। आज दिल्ली के स्कूलों के बच्चे, एक रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहा है, गरीबों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर रहे हैं। आपके बच्चों को भी मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर। एक एक बच्चे पे कितने? 3000 रुपए महीना तो खर्चा हो जाता है। तो अगर 3 बच्चे हो तो 10,000 रुपए महीना खर्चा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आपके 10,000 रुपए महीना बच्चों के ऊपर खर्चा बचेगा। तो 3000 रुपए बिजली का बचेगा, 10,000 रुपए बच्चों की शिक्षा पे बचेगा, 13,000 रुपए महीना। अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, भगवान ना करे कोई बीमार हो, अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, उसके इलाज का सारा खर्चा आपका भाई उठाएगा, केजरीवाल उठाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे गुजरात में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे,
शानदार अस्पताल बनाएंगे। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त है। छोटी सी बीमारी होती है, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त। कैंसर हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा, वो भी सारा मुफ्त, सारा दिल्ली सरकार देती है। आपका भी सारा खर्चा गुजरात सरकार उठाएगी, आपका भाई उठाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो महीने में 5-7 हजार रुपए खर्चा आपकी बीमारी पे आपके परिवार का तो आ ही जाता होगा। दवाइयों का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, वो भी आपकी बचत होगी। इसके अलावा हर महीने 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, महिला के अकाउंट में डलवाएंगे। तो अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो हर एक के अकाउंट में 1000 अलग अलग जाएंगे। कम से कम 3000 रुपए महीना। 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए महिला मिलेगा। तो 3000 रुपए दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख। पिछले 6 महीने में भगवंत मान साहब ने 20,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को, बेरोजगारों को, हर बेरोजगार को 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो अगर आपके घर में 2 बेरोजगार हैं तो कम से कम 6000 रुपए महीना आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये सारा मिला के हो गया 27,000 रुपए महीना। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, सीधा सीधा कम से कम 27,000 रुपए महीने का आपको हर महीने फायदा होगा। अभी मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री जी आए थोड़े दिन पहले, बोले 30,000 करोड़ का पैकेज देके जा रहा हूं गुजरात को। 30,000 करोड़ का, देखा था आप लोगों ने टीवी में? 30,000 करोड़ का पैकेज। वो फेंकते तो हैं 30,000 करोड़ का पैकेज। उनका भाषण सुन के सारे मंत्री खुश हो गए, सारे ठेकेदार खुश हो गए। 30,000 करोड़ और आ गए। मंत्रियों की तो चांदी हो गई, ठेकेदारों की चांदी हो गई। आपको क्या मिला? ठन ठन गोपाल। कुछ नहीं मिला। जनता को क्या मिला 30,000 करोड़ में? कुछ नहीं मिला। ठेकेदारों की चांदी, मंत्रियों की चांदी, 30,000 करोड़ लूटने को मिलेगा। मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता, लेकिन अभी अभी मैंने बताया, अगर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, हर महीने आपके परिवार की 30,000 रुपए महीने की बचत जरूर करा दूंगा, आपके परिवार को फायदा करा दूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, सीधा साधा आदमी हूं। मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, पढ़ा लिखा आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी करनी नहीं आती, पैसे चोरी करने नहीं आते, भ्रष्टाचार करने नहीं आता, गाली गलौज करना नहीं आता, लफंगई करनी नहीं आती। अगर आप लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मेरे को वोट दे देना। मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, अगर आपको अपने लोगों का इलाज कराना है, मेरे को वोट दे देना। मैं आपके बच्चों के लिए अस्पताल, आपके परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। सड़कें बनानी आती है, इंजीनियर हूं। बिजली देनी आती है, 24 घंटे बिजली दूंगा, फ्री में बिजली दूंगा। अगर आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। और अगर लफंगाई चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, गाली गलौज चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। आजकल ये मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 दे रहा है। केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर एक बच्चा पैदा हो, उसको फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मैं बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? देश के लिए काम कर रहा हूं। अगर इस देश के अंदर कोई आदमी पैदा हो, उसको फ्री में इलाज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए?
मैं क्या गलत कर रहा हूं? लोगों का फ्री में इलाज करा रहा हूं। ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनको लग रहा है अगर सबको बिजली फ्री दे दी तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैं कहता हूं मैं गुजरात में स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है स्कूल बनने लग गए तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है अस्पताल बनने लग गए तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और ये दोनों पार्टियां मिलकर काम करती है, आपसे अच्छा कौन जानता है? गुजरात के लोग जानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों में इलू इलू का रिश्ता है। आई लव यू, आई लव यू। रात को 12 बजे मीटिंग हो रही है आजकल इनकी, कैसे आम आदमी पार्टी को हराया जाए। दोनों मीटिंग कर रहे हैं आजकल, दोनों मिलके गाली देते हैं मेरे को, कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भाई राक्षस है? आपका भाई ठग है? या आपके भाई को इतनी गालियां दे रहे हैं, आप बर्दाश्त करेंगे? इस बार जब वोट डालने जाओ इतना झाड़ू का बटन दबाना, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इनको बता देना राक्षस कौन है। दोस्तों, कल हम कहीं जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, रास्ते में कुछ 15-20 बच्चे खड़े होके मेरे को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मेरे को काले झंडे दिखाने लगे। मैंने उन बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों आप जिसका मर्जी नारा लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे काले झंडे दिखाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बस ये याद रखना, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो केजरीवाल ही बनवाएगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा तो तुम्हारे बीमार का इलाज, उसकी दवाई का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा और कोई नहीं करेगा। जिसके मर्जी नारे लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको मर्जी वोट दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सबके लिए स्कूल बनाएंगे, सबके लिए अस्पताल बनाएंगे, सबकी बिजली मुफ्त करेंगे। हमें आपका दिल जीतना है, हमें आपके साथ लड़ाई नहीं करनी है। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन आएगा जिस दिन 6.5 करोड़ गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। हम उनका दिल जीत के आम आदमी पार्टी में शामिल। आजकल भाजपा के भी बहुत लोग मिलते हैं, इतने नाराज हैं भाजपा के लोग, इतने नाराज हैं, कहते हैं जी एक बार तो इनको हरा दो, एक बार तो हरा दो इनको। इनको इतना अहंकार हो गया। भाजपा के लोग बताते हैं कोरोना के टाइम में, बोले जी इतने साल हो गए इनकी पार्टी की सेवा करते करते। कोरोना के टाइम में एक भाजपा का नेता मिला, बोला हमारा कोरोना के टाइम में घर में बीमार हो गया, मैंने अपने बड़े नेताओं को फोन किया अस्पताल में एडमिशन कराने के लिए, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। कहता इस बार तो हराना है इनको। तो मैंने कहा हमारी पार्टी में आ जाओ। बोला नहीं सर पार्टी में नहीं आ सकते, ये लोग हमारा धंधा चौपट कर देंगे, बिजनेस खराब कर देंगे, ये लोग बड़े गंदे लोग हैं। तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी में रहो, हमारी पार्टी में मत आओ। अपनी पार्टी में रह के इस बार भाजपा को हराने के लिए काम करो, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए काम करो, अंदर रह के उनको हराने का काम करो। और आप लोग जितने लोग आए हैं, आपसे मैं 2 प्रॉमिस चाहता हूं, 2 वचन चाहता हूं। एक, यहां से जब बाहर निकलेंगे अपना अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसमें जितने व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप खोलना, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको मैसेज भेजना। एक मैसेज बना लेना, सबको भेजना कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं। आप भी एक बार केवल 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे के देखो। भेजेंगे नहीं भेजेंगे? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोग बाहर निकल के आधे घंटे के अंदर सब लोग मैसेज भेज देना। और दूसरी बात, अपने अपने घर में जाओगे, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में, घर घर में जाके एक एक आदमी को 100-100 वोट तैयार करने की जिम्मेदारी लेनी है। करोगे? सब लोग करेंगे? भारत माता की। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। રાષ્ટ્રગીત માટે આપણે આપણી જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જશું। આપણે સૌ રાષ્ટ્રગીત માટે આપણી જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જશું। अधिनायक जय हे भारत भाग्य पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड
प्लवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधि तरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की, भारत माता की। खूब खूब धन्यवाद। મોંઘવારી એ તો બધી વાળી છે દાટ સરકારી દવાખાના સુધરશે ગરીબોને ઈલાજ હવે ફળશે રોજગારી નો લારા લારી એક ટોપી જે સહુ પર ભારી લોક અધિકાર